बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum student. We start our class with the name of Allah who is the most beneficent and merciful. This is class 7 and the period is the English language text period. Week number 5, video number 5. Today we will study about vocabulary and extract of unit number 4. In previous class I have taught you the manual, structure of the manual and features of the manual and reflecting. Today we will discussing about vocabulary. In vocabulary we are discussing an affix first and affix and suffix. First, what is affix? Affix What is affix? An affix literally fix itself to a root word or a stem word. And an affix change the meaning of the word. Change the meaning of the word. Student, an affix literally fix itself to the root word or a stem word. What is root word or a stem word? Mean basic word. An affix change the meaning of the word. For example, stem word like with affix unlike. Student, an affix may be attached to the beginning or the end of the root word or the stem word. For example, great. Great is a root word. Grateful means an affix may be attached to the beginning or to the end. To the beginning or this is to the end of the root word or a stem word. Now the next is what is suffix? Student, if an affix attached to the end of the word is called suffix.
If an affix is attached to the end of the word is called suffix. For example, word, stamp word or root word, pain becomes painful. In the end, painful. Home, homeless. Comfort, comfortable. If an affix is attached to the end of the word is called end of the root word or stamp word, means basic words. The next topic is extract. Name is Outdoor Survival Guide. Written by Hugh McManus. Extract about locating enough water for survival. Survival means how to survive in a difficult circumstances. Student, first I will brief you the summary of this extract. 80% of the human body is made up of water. Since we have no method of storing water in our bodies, but there are few steps to find water or collect water. Water may be found or collected in glacier, dry river bed, collecting rain, collecting dew, and cliffs and the rock surfaces. These are all the places where we can look for water, but it is not pure for drinking. Only rain and the dew are the water sources which is always been to drunk without boiling. Let's start reading. Outdoor Survival Guide, page number 98, written by Hugh McManus. The importance of water. 80% of the human body is made up of water. Since we have no method of storing excess water in our bodies. इंसानी जिस्म का 80% हिस्सा पानी से बना है और अभी तक कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि हम बॉडी के अंदर पानी को स्टोर कर सकें. We must drink beer minimum of 3 liters of water every day. और हम तकरीबन एक दिन में 3 लीटर पानी पी लेते हैं. We need water for the control of our body temperature through perspirations, for our kidneys to eliminate waste products and for our nervous system to operate. पानी की ज़रूरत हमें होती है कि हम अपने जिस्म के बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर सकें. कैसे? थ्रू द perspiration फर्स्ट, बाय द यूरिनेशंस. और इसी तरह हमारे नर्वस सिस्टम को फंक्शन करने के लिए, नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए भी वाटर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हमारा ब्लड फ्लो हो. Having a sufficient supply of good water is thus vital for life. Preparation for any hiking, climbing or biking into the isolated areas must include access to an adequate supply of water for each member of the party for the duration of the journey. Hiking means walking, climbing, चढ़ना और biking, racing. हम जब भी हम इस तरीके के किसी भी जर्नी पे निकलते हैं तो हमें आइसोलेटेड एरियाज़ हम वहाँ पे देखते हैं और आइसोलेटेड एरियाज़ में हमारे पास इतना पानी नहीं होता कि हम अपने पूरे जर्नी के अंदर उस पानी को यूज़ कर सकें. If water cannot be carried by vehicles or by each person, then supply of water must be found during the journey. अब ऐसा भी नहीं है कि हम व्हीकल्स में जो नहीं पानी को लेकर जा रहे हैं और हर मेंबर के पास अपना पानी, इतना पानी, इनफ पानी नहीं है कि वो पूरे जर्नी में उस पानी को यूज़ करे. तो हमें पानी को फाइंड करना है और हमें पानी को सर्च करना है और वो वेस्ट किस तरीके के हैं आगे चल के हम देखेंगे. When water supply has run out means stop. When water supply has run out or been contaminated means dirty water.
द फॉलोइंग डायरेक्शन ऑन हाउ टू फाइंड वाटर इन अ वैरायटी ऑफ रीजन। अगर जो नहीं पानी की सप्लाई रुक जाती है और पानी अगर मिल भी रहा है तो वो जो नहीं ड्रिंकेबल वाटर नहीं है, तो हमें फिर फॉलोइंग डायरेक्शन ऑन हाउ टू फाइंड वाटर कि हमें पानी को किस तरीके से डिफरेंट रीजन्स में पानी को हमें फाइंड करना है, हाउ टू प्रिवेंट वाटर लॉस, और पानी को लॉस होने से कैसे हमने प्रिवेंट करना है, हमने पानी को कैसे लॉस होने से स्टॉप करना है, एंड हाउ टू कलेक्ट वाटर कुड सेव योर लाइफ, और पानी किस तरीके से हमारी जिंदगी को सेव करता है। पेज नंबर 99, वेयर टू लुक वाटर। अब हम पानी को कहाँ पर सर्च कर सकते हैं, कहाँ पर हम पानी को फाइंड कर सकते हैं। When rain falls in mountain, it gather in a small stream which joins together in a large torrent. देखिए जब पहाड़ों से पानी नीचे आ रहा है वो कहाँ पे जमा हो रहा है, स्ट्रीम्स में, और वो स्ट्रीम एक लार्ज टॉरेंट बना रहे हैं। लार्ज टॉरेंट मीन मूविंग फास्ट, यानी कि पानी बहुत फास्ट तेजी से आ रहा है। बाय द टाइम, लेकिन टाइम के साथ, बाय द टाइम वाटर रीचेज द लो लैंड, जैसे जैसे पानी नीचे आ रहा है, these torrents have become the large slow moving rivers, यानी कि स्ट्रीम्स आके किससे मिल गया, रिवर से, which eventually flow into the sea. पानी पहाड़ से नीचे आया, स्ट्रीम से मिला, स्ट्रीम ने वो स्ट्रीम से रिवर में मिला और रिवर से वो सी में मिल गया। ड्रिंकेबल वाटर मे बी फाउंड एनीवेयर, पीने का पानी हम हर जगह पे हमें मिल सकता है विद इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम से। ऑल वाइट वाटर शुड बी प्योरीफाइड, और जितना भी कॉन्टामिनेटेड डर्टी वाटर है उसे हमें प्योरीफाई करना है, साफ करना है बिफोर ड्रंक, पीने से पहले। टू अवॉइड वाटरबोर्न डिजीजेज, वाटरबोर्न डिजीजेज diseases that can be spread through the water source. How can we find the water first? First step is glacier. Glacier often melt and produce steam. जब glaciers melt होते हैं तो वो क्या produce करते हैं, streams. However, glacier water contain large amount of the rock powder which can cause diarrhea. जब ये ग्लेशियर का पानी पहाड़ों से पिघल कर नीचे आता है तो उसके साथ बहुत हैवी अमाउंट में पाउडर होता है, हमारे पास हैवी अमाउंट में रॉक पाउडर मौजूद होता है, और उससे जो नहीं है वो किस चीज का कॉज बन सकता है, डायरिया का कॉज बन सकता है। सो हाउ टू प्यूरिफाई फ्रॉम दिस ग्लेशियर? फर्स्ट स्टेप, कलेक्ट वाटर इन द क्लीन कंटेनर। सबसे पहले तो आप जो ये पानी है आप इसे ग्लेशियर के पानी को एक कंटेनर में जमा कर लेंगे। लीव द वाटर फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स, और उस पानी को 8 आवर्स के लिए आप लोगों ने साइड पर कर देना है। फॉर द रॉक पार्टिकल टू सेटल्स, तो वो रॉक जो पार्टिकल्स हैं वो जो नहीं नीचे तह में बैठ जाएंगे। नंबर 3, pour the water through a clean fine piece of the material such as shirt to filter out of fine particles. और फिर एक आपने फाइन क्लॉथ पीस ले लेना है और उस पानी को पोर कर लेना है, पानी को दूसरे कंटेनर में आपने निकाल लेना, जो तमाम रॉक पाउडर होगा वो उसके कपड़े के ऊपर रह जाएगा और पानी आपके पास प्योरीफाई होकर आ जाएगा। सेकेंड इज cliff and the rock surfaces. What is cliff and the rock surfaces? This is basically cracks. See here student, this is a mountain. These are cliffs. और ये आप ये पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ पे पूरा यहाँ पर माउंटेन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको माउंटेन नजर नहीं आ रहा, यानी कि ये जो पीछे स्ट्रक्चर रह गया, दिस इज कॉल्ड रॉक सर्फेसेस। दीज आर बेसिकली होल्स, दीज आर बेसिकली क्रैक्स। ये क्रैक्स हैं, दरारें पड़ गई हैं माउंटेन में। क्लिफ्स एंड द रॉक सर्फेसेस, वाटर कलेक्ट इन होल्स एंड क्रैक्स इन रॉक्स, यानी कि जो रॉक्स और माउंटेन में जो क्रैक्स पड़ जाते हैं इनके अंदर आपको फ्रेश वाटर मिलेगा, यहाँ पर आप रेन वाटर आके कलेक्ट हो जाता है इन होल्स में। स्प्रिंग सीपिंग थ्रू रॉक सर्फेसेस, स्प्रिंग सीपिंग मीन फ्लो फ्रॉम द स्मॉल होल्स, यहाँ से जो नहीं पानी सर्विसेज से ये जैसे यहाँ पे ये क्रैक्स हैं इनसे यहाँ पानी फ्लो होने लग जाएगा। Look for the patches of the green vegetation such as the mosses of ferns. Mosses of ferns is the bushes, झाड़ियाँ हैं वहाँ पर, आपको वहाँ जहाँ पे भी ग्रीन वेजिटेशन नजर आएगी वहाँ पे भी एक साइन है कि यहाँ पर वाटर मौजूद है। और for the cracks at the bases of the cliff from which fresh water may be trickling, और यहाँ पर भी आपको fresh water इन cracks के अंदर नजर आएगा। Check nearby surfaces in rocks where rain water may be collect.
लुक फॉर द साइन ऑफ द डैम्पनेस और द सीपिंग स्प्रिंग वाटर इन द क्लिफ फेसेस। और क्लिफ फेसेस में अब सबसे पहले तो जहाँ पर भी ये पानी कलेक्ट होगा तो वहाँ पर आपको जगह डैमनेस यानी कि आपको नम नज़र आएगी, वहाँ का पूरा हिस्सा नम यानी कि पानी पानी सा नज़र आएगा वहाँ पर, और जो नहीं वहाँ से फिर पानी फ्लो करेगा बाहर। Trees and the vegetations. Trees or other vegetations indicate the presence of water. जहाँ पर आपको trees नजर आएंगे, green vegetation नजर आएगा, वहाँ पर definitely presence of water है। Look out for these signs of water. First, dry river bed. ड्राई रिवर बेड यानी कि वहाँ पर पहले रिवर मौजूद था, वहाँ पर पानी मौजूद था और अब वो पानी क्या हो गया, ड्राई हो चुका है। Even though a river bed appears dry and waterless, you can find fresh water below the surface. जहाँ पर रिवर सूख चुका है, ड्राई हो गया, वहाँ पर भी आप फ्रेश वाटर को फाइंड कर सकते हैं। To collect water from a dry river bed, अब हमें किस तरीके से जो नहीं ड्राई रिवर बेड से फ्रेश वाटर को कलेक्ट करना है। First, find an area that is sandy without thick layer of the silt or gravel. Silt और ग्रेवल। टाइप्स ऑफ सैंड, ये एक तरीके की मट्टी है सिल्ट और ग्रेवल, लेकिन ये थोड़ी मोटी मट्टी है। फर्स्ट, डिग द डीपेस्ट होल यू कैन फाइंड। जितना आप उस जगह को उस जहाँ पे वो सरफेस है आप उसको जितना डिग कर सकते हो, खोद सकते हो, आप उस सरफेस को वहाँ पर खोदोगे। डिग वेयर द बेड इज स्टिल मॉइस्ट, और जब तक खोदना है जब तक आपको नम मिट्टी नजर ना आ जाए, यहाँ पे मॉइस्ट मिट्टी यानी कि हल्का हल्की पानी वाली मिट्टी निकलने ना शुरू हो जाए। डिग वेयर इट अपियर्स दैट यूज टू बी फॉर इंस्टेंस इन द आउटसाइड बेड ऑफ द रिवर, और फिर वहाँ से आपको पानी ऊपर आना शुरू हो जाएगा। अलाउ वाटर टू सीप इनटू द होल, स्कूप द वाटर इनटू द कंटेनर, फिर उस पानी को आप निकालना शुरू कीजिए कंटेनर में। और प्योरीफाई द वाटर बाय बॉइलिंग इट, और जो नहीं उसको फिर प्योरीफाई किस तरीके से करेंगे, आप बॉयल कर लीजिए फॉर द 10 मिनट्स के लिए उसे बॉयल कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग इज सैंड्स एंड ड्यून्स। सैंड्स एंड ड्यून्स ये भी एक मिट्टी की पहाड़ियां हैं, मिट्टी के टीले कह लीजिए आप इन्हें। देयर मे बी वाटर वेयर रेन हैज रन डाउन द ड्यून्स एंड द सीप इनटू द ग्राउंड, यानी कि मिट्टी के टीलों से पानी नीचे ग्राउंड में आ रहा है। तो अब हमें हाउ टू वी कलेक्ट और हाउ टू वी कलेक्ट द वाटर फ्रॉम द सैंड ड्यून्स, हमें सैंड ड्यून से पानी को किस तरीके से कलेक्ट करना है। टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम द सैंड ड्यून्स, फर्स्ट स्टेप इज dig at the lowest point between dunes until you are reach dam of sand। अब देखें ये आपके पास दो मिट्टी के टीले हैं और इनके दरमियान की जगह को आपने डिग करना है। पानी यहाँ से फ्लो होकर यहाँ पे भी नीचे आ रहा है, यहाँ से फ्लो होकर भी यहाँ पर आ रहा है, तो आपने इस वाली सरफेस को आपने क्या करना है, डिग करना है। डिग करना शुरू करेंगे। डिग एट द लोएस्ट पॉइंट बिटवीन ड्यून्स अंटिल यू रीच डैम सैंड, जब तक आप इसे डिग करते रहोगे जब तक वहां से आपको कौन सी डैम सैंड नजर ना आ जाए, यानी कि नमी वाली सैंड आप नजर ना आ जाए। कंटिन्यू टू डिग अंटिल फ्रेश वाटर सीप इनटू द होल, और जब पानी फ्रेश वाटर आपको सरफेस पर नजर ना आ जाए। नेक्स्ट इज बीच। बीच इज सी शोर, साहिल का किनारा। डू नॉट ड्रिंक सॉल्ट वाटर। अब जो सी का पानी है वो सॉल्टी वाटर होता है और जो पीने के ये नहीं होता। टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम द बीच, लेकिन हम बीच से पानी को कैसे कलेक्ट करेंगे। डिग अबव द हाई वाटर मार्क, इसी तरीके से हम जो नहीं है डिग करना स्टार्ट करेंगे। अलाउ वाटर टू सीप इनटू द होल, और जब तक पानी ऊपर होल में ना आ जाए। स्कूप फ्रेश वाटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द वाटर। इफ फ्रेश वाटर इज प्रेजेंट इन द सैंड इट विल सीप इनटू द होल ऑन टॉप ऑफ द डेंसर सॉल्ट वाटर। देखिए आप जितने कम फीट्स पर पानी ऊपर आ जाएगा वो वहाँ पे शुरू में आपको फ्रेश वाटर नजर आएगा, यानी कि हमने तकरीबन ले लीजिए हमने 50 फीट जो नहीं डिग करा, उसमें आपको शुरू में क्या नजर आएगा, फ्रेश वाटर, वो आप निकाल लीजिए। और जैसे जैसे आप डिग करते जाओगे तो वहाँ पे आपको सॉल्ट वाटर ही मिलेगा बीच पर। नेक्स्ट हेडिंग इज साइन ऑफ वाटर, पानी की मौजूदगी। द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज यूजुअली इंडिकेट बाय साइंस ऑफ लाइफ सच एज द ग्रीन वेजिटेशन। देखिए जहाँ पर भी पानी की मौजूदगी है, साइंस ऑफ वाटर है, वहाँ पर लाइफ मौजूद है।
ग्रीन और उनमें सच एज द ग्रीन वेजिटेशंस, आपको यानी कि हर जगह पे आपको ग्रीनरी नजर आएगी। एनिमल ट्रैकर्स, एनिमल ट्रैक्स क्या होते हैं, यानी कि कंटिन्यू लाइंस में आपको वहां पर एनिमल्स चलते हुए नजर आएंगे और ह्यूमन हैबिटेशंस और आबादी होगी। However, there are other natural signs, इसके अलावा भी जो ना आपको साइंस जो नहीं आपको इसकी प्रेजेंस ऑफ वाटर की मौजूदगी का पता चलेगा, जो कि हिडन है, हिडन वाटर, जो कि आपको नजर नहीं आ रही। In an otherwise lifeless terrain, look out for living things, although certain birds such as the vultures can travel long distance away from water. यानी कि आप कोई सा भी ऐसा टॉरेंट्स, यानी कि वहाँ पे जहाँ पे पॉपुलेशंस नहीं है, आबादी नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी आपको प्रेजेंस ऑफ वाटर का हमें ऐसे पता चलेगा। अगर वहाँ पे विल्चर्स वगैरह आ रहे हैं तो वो पानी वो बहुत दूर से डिस्टेंस कवर करते हुए आ रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आप वहाँ पे ऐसे बर्ड्स देख रहे हैं तो वहाँ पर भी प्रेजेंस ऑफ वाटर मौजूद है, पानी मौजूद है, तभी आपको वहाँ पर वो बर्ड्स और एनिमल्स दिख रहे हैं। नेक्स्ट, ट्रीज एंड अदर वेजिटेशंस। ऑल ट्रीज नीड वाटर टू लिव। ट्रीज को ग्रो होने के लिए वाटर की जरूरत होती है। Although some drive from a long tap root into the ground in search of it, यानी कि कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं वो सरफेस में, ग्राउंड में बहुत अंदर तक पेनिट्रेट हुए होते हैं उनकी रूट्स। पाम ट्रीज यूजुअली ग्रो वेयर देयर इज सम काइंड ऑफ वाटर क्लोज टू द सरफेस, और पाम ट्रीज मोस्टली वहां पे ग्रो होते हैं जहां पर पानी सरफेस से करीब होता है। एंड सम वैरायटीज स्टोर वाटर इन देयर ट्रंक्स और रूट, और कुछ पाम ट्रीज की वैरायटीज ऐसी हैं जहां पर आप वो बिल्कुल क्लोज सरफेस के पानी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वो आपको ग्रो हुए मिलेंगे। इट्स मीन के वो जो रूट्स हैं उसमें उन्होंने पानी को एब्जॉर्ब किया हुआ है, उस पानी को स्टोर किया हुआ है। नेक्स्ट इज एनिमल ट्रैक्स। ट्रैक्स मीन कंटिन्यू लाइन्स में एनिमल्स आप देखेंगे। ग्रेजिंग एनिमल्स नीड टू ड्रिंक एटलीस्ट ट्वाइस डेली। जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, जो ये घास और फूस खाने वाले एनिमल्स हैं, ये जो नहीं है दिन में दो दफा पानी पीते हैं। फर्स्ट एट डाउन एंड सेकेंड डस्क, यानी कि सुबह के टाइम पर और शाम के टाइम पर। सो एट दिस टाइम दीज आर यूजुअली हेडिंग टू और फॉर वाटर, यानी कि अब वो जो नहीं इस डायरेक्शंस में निकल जाते हैं जहां पर उन्हें पानी मिल सकता है। लुक फॉर वेयर एनिमल ट्रैक्स कन्वर्ज सिंस दिस मे मेंट दैट अ वाटर सोर्स इज नियर बाय। जब आपको ऐसे एनिमल्स कन्वर्ज करते हुए नजर आए, कन्वर्ज मीन्स कम टुगेदर, यानी कि जब वो ऐसे कंटिन्यू लाइन में आपको जाते हुए नजर कहीं पर भी आ रहे हैं, इट्स मीन के वहां पे भी प्रेजेंस ऑफ वाटर है। नेक्स्ट है बीज एंड फ्लाइज। बीज डू नॉट यूजुअली फ्लाई मोर देन 5 किलोमीटर्स। 5 किलोमीटर से ज़्यादा बीज फ्लाई नहीं कर सकती। फ्रॉम देयर नेस्ट एंड मस्ट हैव अ कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर। वो अपने नेस्ट से तकरीबन 5 किलोमीटर्स तक डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, और इसके अलावा उन्हें कांस्टेंट यानी कि मुस्तकिल कंटिन्यू पानी की नीड होती है। वॉच द डायरेक्शन इन विच दे फ्लाई अपॉन लिविंग द नेस्ट। तो अगर आपको पानी की मौजूदगी का पता लगाना है, तो अगर आप वहाँ पे कहीं पे ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको पानी नहीं मिल रहा है, तो आप बीज की डायरेक्शन देखें वो कहाँ पर फ्लाई कर रही हैं। फ्लाइज स्टे इवन क्लोजर टू वाटर। वो वहीं पर स्टे करती हैं जहाँ पे करीब करीब में पानी मौजूद हो। अबाउट 100 मीटर्स और सो ऑन, यानी कि वो 100 मीटर्स के अंदर अंदर आपको 100 मीटर्स के अंदर अंदर आपको वहाँ पे पानी मिलेगा। नावथलेस इन द डेजर्ट दे सीम्स टू बी अराइव फ्रॉम नोवेयर रिगार्डलेस ऑफ द नियरेस्ट सोर्स ऑफ वाटर। और आपको ये बीज डेजर्ट्स में नहीं मिलेंगी, वहाँ पर पानी इतनी आसानी, वहाँ पे पानी नहीं मिलेगा तो वहाँ पे आपको बीज भी नहीं मिलेंगी। Ants on the move. Ants depend on a constant water of supply for the survival. इसी तरीके से उन्हें भी अपनी ज़िंदगी को सेव करने के लिए ants को भी कांस्टेंट वाटर सप्लाई की ज़रूरत होती है, उन्हें भी कंटिन्यू वाटर सप्लाई की ज़रूरत होती है। If you see any marching up a tree, marching up यानी marching में move mannerly, यानी कि आपने देखा होगा ट्रीज वगैरह में, यानी कि ये ट्री है, एक जो नहीं यहाँ पर ये बिल्कुल आंट्स है ना, एक ये रॉ बनाई हुई होती है इस तरह, तो ये क्या मार्चिंग, बिल्कुल वो एक तरीके से मैनरली जो नहीं है चल रही होती हैं। तो इफ यू सी एनी मार्चिंग अप अ ट्री, अगर आप आंट्स को देखेंगे, दे आर प्रोबेबली हेडिंग फॉर द सर्वाइवर ऑफ रेन वाटर। तो उधर भी कहीं ना कहीं पर पानी उधर स्टोर्ड है उन लीव्स में, जहाँ पर ये ट्रैकर्स आपको नजर आएगा। ये ट्रैक अगर आपको नजर आएगा, इट्स मीन के यहाँ पर इधर प्रेजेंस ऑफ वाटर मौजूद है। नेक्स्ट, प्रिवेंट वाटर लॉस। प्रिवेंट मीन स्टॉप, हमने वाटर लॉस को कैसे स्टॉप करना है, पानी को ज़ाया होने से कैसे रोकना है।
as water is lost from the body through breathing, perspirations and the urinations. अब जो हम ये सांस ले रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, इससे भी ये वेपर्स बाहर आ रहे हैं, तो ये भी वाटर लॉस हो रहा है, यानी कि मुस्तकिल बोलना, इससे आपका भी हल्क खुश्क हो जाता है, आपको पानी की नीड होती है। तो ये कह रहे हैं कि थ्रू ब्रीथिंग भी जो नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, वाटर अपना लॉस कर रहे हैं, प्रेस्पायरेशंस पसीने के थ्रू एंड द यूरिनेशंस, इट मस्ट बी रिप्लेस इफ इट इज नॉट वाटरलेस बिगिन टू अकर। और अगर हम इसे स्टॉप नहीं कर सकते और ये इसका कंटिन्यू लॉस होता जा रहा है, दिस बिकम मोर सीरियस अंटिल रिजल्ट इन डेथ। और जब अगर हम इसे स्टॉप नहीं कर पाएंगे तो फाइनली क्या होगा कि हम किसकी तरफ जा रहे हैं, डेथ की तरफ जा रहे हैं, सीरियस। इवन व्हेन रेस्टिंग इन द शेड, लेकिन अगर हम जो नहीं है किसी शेड पर हैं, साए में खड़े हुए हैं, द एवरेज पर्सन लॉसेस लूज ओवर 1 लीटर ऑफ वाटर ईच डे, यानी कि हम शेड में हैं, साए में, फिर भी हम तकरीबन 1 लीटर पानी को लूज कर रहे हैं अपनी बॉडी से। एक्सर्शन, एक्सर्शन मीन एक्टिविटी, काम करना। एक्सर्शन इंक्रीज वाटर लॉस, जब हम एक्टिविटी करेंगे, जब हम कोई काम करेंगे तो डेफिनेटली तो हमारा पानी लॉस होगा। कैसे? थ्रू द प्रेस्पायरेशंस, थ्रू प्रेस्पायरेशन स्पेशली इन द हॉट वेदर और स्पेशली गर्मी के महीने में। इफ यू आर शॉर्ट ऑफ वाटर इंक्रीज योर चांस ऑफ सर्वाइवल बाय फॉलोइंग दीज एक्शंस। लेकिन अब जिस तरह इफ़ यू आर शॉर्ट ऑफ वाटर, अगर पानी की कमी है तो हम पानी की कमी को किस तरीके से हम उस पर ओवरकम कर सकते हैं, हम उस पर काबू कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, वेज टू प्रिवेंट वाटर लॉस, कि हम पानी को कैसे स्टॉप कर सकते हैं। फर्स्ट ट्राई टू स्टे कूल इन द शेड, फर्स्ट कि आप जो नहीं साए में रहें, शेड में रहें। सेकेंड, डू नॉट लाई ऑन द हॉट ग्राउंड, और आप ऐसी गर्मी वाली जगह पर हॉट सरफेस पर नहीं लेटें। नंबर थर्ड, ब्रीथ थ्रू योर नोज टू रिड्यूस वाटर लॉस, और आप जो नहीं आप ब्रीथ करें थ्रू योर नोज, कि आप ज़्यादा बोले नहीं, बोलने से बताया कि आपके वाटर वो वेपर्स के थ्रू हमारा जो पानी लॉस हो रहा है, अगर हम कम बोलेंगे, हम जब कम बोलेंगे और हम नाक से ब्रीथ करेंगे तो यहाँ पर भी हम एक तरीके से 1% पानी को सेव कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, रेस्ट ड्यूरिंग द डे, देन लुक फॉर वाटर एंड वर्क ओनली एट नाइट, यानी कि कोई ऐसे काम होते हैं जो हम रात में कर सकते हैं और हैं वो दिन के काम, लेकिन हम उसे रात में भी कर सकते हैं, तो हम दिन में रेस्ट करें और हम रात में उस काम को कर लें, तो इससे भी हम अपने वाटर लॉस को स्टॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट, ईट द मिनिमम अमाउंट टू कीप यू अलाइव, और आप जो नहीं है कम से कम खाओ। क्यों कम से कम खाओ? क्योंकि उसे जितना हम खाएंगे उसे डाइजेस्ट करने के लिए हमें पानी की भी उतनी ही ज़्यादा नीड होगी। नेक्स्ट, ओमिट फैटी फूड्स फ्रॉम योर डाइट, यानी कि ओमिट मीन्स लीव आउट, आपको ऐसे ऑयली खानों से भी जो नहीं है अपने आप को बचाना है, क्योंकि इसके लिए भी आपको हैवी अमाउंट में पानी की नीड है। They require large amount of water for the digestion. Next, do not wait until you have run out of water before going to search for more. इंतज़ार ना करें कि पानी ख़त्म हो, ये नहीं आप वेट करेंगे पानी ख़त्म होगा फिर ही हम नेक्स्ट पानी को हम उसकी तलाश में निकलेंगे। ऐसा नहीं, पानी ख़त्म होने से पहले ही आपने जो नहीं है पानी दूसरे अपने लिए पानी को अरेंज करना है। नेक्स्ट स्टेप इज कलेक्टिंग वाटर। अब जो नहीं है हमने पानी को कैसे कलेक्ट करना है। इन सर्वाइवल सिचुएशन, सर्वाइवल में डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस, हाउ टू सर्वाइव इन अ डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस। आफ्टर फाइंडिंग शेल्टर, फर्स्ट आपने फाइंड ही करना है शेल्टर, सबसे पहले तो आपने रहने की जगह को देखना है। द कलेक्शन ऑफ वाटर इज योर नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। जब आपने एक शेल्टर को फाइंड कर लिया तो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क क्या है कि हमने पानी को सर्च करना है, हमने पानी को फाइंड करना है कि कहाँ पर हमें पानी मिल सकता है। सिंस विदाउट वाटर यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर मोर देन अ फ्यू डेज, बगैर पानी के हम कुछ दिनों के बाद नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। यू मे नॉट ऑलवेज बी फॉर्चून इनफ टू बी कैम्प बिसाइड अ सेफ reliably water supply. However, you can sustain yourself in an emergency by collecting rain or dew. तो ये है कि आप इमरजेंसी में कलेक्टिंग रेन और कलेक्टिंग ड्यू, अब ये कि बारिश तो हर वक्त नहीं होती लेकिन कलेक्टिंग ड्यू आप उसे कलेक्ट कर सकते हैं। ड्यू को भी, ड्यू क्या है, और वाटर कलेक्ट एज रेन और ड्यू हैज़ द advantage over other natural water source of always being pure enough to drink without boiling or use the purification tablets. यानी कि ये वाटर ड्यू और जो रेन वाटर है ये ऐसे नेचुरल वाटर सोर्स है जिसमें हमें प्योरिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं होती है कि हम उसे विदाउट बॉइलिंग यूज़ कर सकते हैं। ये नेचुरल वाटर सोर्स है हमारे पास।
नेक्स्ट, कलेक्टिंग रेन, कि हमने अब बारिश के पानी को कैसे कलेक्ट करना है। While you are in the camp, set out container to collect any rain that may fall. सबसे पहले तो आपने जो नहीं है अब ऐसे कंटेनर को सेट करना है, कलेक्ट द रेन वाटर मे फॉल, के पानी बारिश होने से पहले आपने कंटेनर को सेट कर लेना है। यू शुड ऑल्सो कंटेन द फ्लो फ्रॉम द रूफ ऑफ योर शेल्टर, और जहाँ पर आप ये सेट करेंगे तो आपने अपने शेल्टर, अपने रूफ की शेल्टर को इस तरीके से सेट करना है कि collect the flow from the roof of your shelter, use improved guttering to channel the rain into your container. यानी कि जो शेल्टर है वो उसका ऐसे स्लोप की तरफ होना चाहिए कि पानी का जो फ्लो है वो आके सीधा कंटेनर में पानी आपके पास कलेक्ट हो। इवन इफ देयर इज रिवर और स्ट्रीम नियर बाय, और करीब में अगर कहीं पे रिवर और स्ट्रीम आपके पास मौजूद है, यू शुड स्टिल कलेक्ट रेन वाटर। ऐसा ही नहीं कि फिर आप कहें कि बस छोड़ दो, हमें छोड़ देना चाहिए और हमें जो नहीं है वहाँ से हम पानी ले लेंगे, फिर भी आपको स्टिल जो नहीं है वाटर को कलेक्ट करना है। सिंस इट विल बी प्योर, allowing you to dispense with using chemical purification tablet और boiling the water, और फिर इस पानी को आप डिस्पेंस कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और वो पानी को आप प्योरिफिकेशन टैबलेट्स के जरिए आप प्योरीफाई कर लोगे। टू कलेक्ट रेन वाटर, अब पानी को ये एक प्रोसेस है कि पानी को आपने रेन वाटर को कैसे कलेक्ट करना है। फर्स्ट स्टेप, स्ट्रेच अ वाटरप्रूफ शीट, यानी कि एक वाटरप्रूफ शीट लेनी है आपने टाइटली ओवर द वाइड एरिया ऑन अ स्लोप, यानी कि अब आपने जो नहीं एक ऐसा वाइड एरिया, बहुत खुली सी सरफेस होगी जहां पर आप जो नहीं वो वाटरप्रूफ शीट को सेट करेंगे। पैक डाउन और वुडन स्पिन्स के जरिए उसे पैक डाउन कर देंगे कि वो यहाँ बिल्कुल टाइटली उसे आपने पैक डाउन कर लेना है। इट्स कॉर्नर विद स्टिक्स एंड कलेक्ट द रेन इनटू द कंटेनर, और जो नहीं जब आप उसे वो पैक कर लेंगे वाटरप्रूफ शीट्स को, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने जिस तरह ये हमने शीट्स को यहाँ और यहाँ ये वुडन पिन से हमने इसे टाइटली हमने यहाँ पे क्या क्या कर लिया, स्ट्रेच कर लिया। अब उसका हमने वे ऐसे बनाना है कि सारा पानी आके कहाँ पे कंटेनर में कलेक्ट हो जाए। When it rains heavily, keeps close watch to that you can quickly change the container when it gets fill, और जैसे ही आप वहाँ सामने बैठे हुए होना चाहिए, जैसे ही कंटेनर फिल हो जाए फौरन से उसके रिप्लेस में दूसरा कंटेनर ले आएं ताकि वो भी फिलअप हो जाए। अब हमने कैसे करना, हाउ टू कलेक्ट अ ड्यू, कलेक्टिंग ड्यू। एज एयर कूल्स एट नाइट, जैसे कि हवा रात के टाइम पर ठंडी हो जाती है, द वाटर वेपर्स इज कंटेन कंडेंस एज ड्यू ऑन लो लाइंग ग्राउंड, यानी कि वो जो वाटर वेपर्स हैं वो इतने कंडेंस हो जाते हैं, उनका टेम्परेचर इतना कम हो जाता है, वो फ्रीज हो जाते हैं, और जब वो फ्रीज हो जाते हैं और फिर वो ड्यू की फॉर्म में ग्राउंड में आपको मिलेगा। वेजिटेशन और व्हीकल्स, किसके ऊपर, वेजिटेशन से आपको जो नहीं ग्रास के ऊपर सुबह सुबह में आपने देखा होगा किस तरीके से पानी के छोटे छोटे से ड्रॉप्स आपको मिलेंगे, और व्हीकल्स गाड़ी के आपको मिरर्स पे भी जो नहीं आपको ड्यू के ड्रॉप्स नजर आएंगे। मैनी प्लांट्स और इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स डिपेंड अपॉन अ ड्यू और ड्यू टू सर्वाइव, इसी तरीके से उन्हें कुछ आंट्स, कुछ इंसेक्ट्स और कुछ एनिमल्स को वो सिर्फ ड्यू वाटर भी जो नहीं उनके लिए बहुत ड्यू वाटर को वो अपने सर्वाइवल के लिए यूज़ करते हैं। एंड ह्यूमन्स कैन ऑल्सो मेक अप ऑफ दीज नेचुरल वाटर सप्लाई, और इंसान भी इस पानी को कलेक्ट कर सकते हैं। हाउ टू कलेक्ट ड्यू, सॉक अ पीस ऑफ क्लॉथ इन अ लॉन्ग वेट ग्रास, एक आपने बहुत ही बड़ा कपड़े का पीस लेना और उसे आपने ग्रास पे फैला लेना है। द बेस्ट टाइम फॉर कलेक्टिंग इज राउंड डाउन, और इसका सबसे अच्छा टाइम है जो हम कलेक्ट करेंगे वो एट डाउन टाइम है, यानी कि बिल्कुल सुबह के फर्स्ट टाइम में हम उस ड्यू को हम कलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज सिंस आफ्टर सनराइज ड्यू क्विकली ओवरपीरियड्स, जैसे ही जो नहीं सन राइज होगा, सूरज निकलता है, वो जो ड्यू है वो क्या होगी, एवोपरेट हो जाएगी, वो उड़ जाएगी, और फिर व्हेन देन द क्लॉथ इज सॉक्ड, और जैसे ही वो जो आपने जो ग्लास के ऊपर जो सारा वो फाइन क्लॉथ फैलाया हुआ है, रिंग इट मीन यानी कि आपने उसको स्क्विज कर लेना है, उसे आपने निचोड़ लेना है आउट इनटू द कंटेनर, किसी भी कंटेनर में, और इस तरीके से आप ड्यू के पानी को भी कलेक्ट कर रहे हो, वो भी एक नेचुरल सोर्स है, इसे हम विदाउट बॉइलिंग यूज कर सकते हैं। रिपीट अंटिल यू हैव इनफ, और ये कि आपके लिए पीने के लिए इनफ होगा। स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। आई होप यू गॉट everything clearly. Before ending the class, let's discuss about the classwork and the homework. First, I will tell you about the classwork. What will you do? You will do your copywork from the given content, page number 107 and 108. Work is define suffix and affix,
second words meaning. Next day, outdoor survival guides. Student, you also read again it and MCQs. About the homework, what will you do? I will write the diary, note down. Read the extract again. Plus collect the manuals. At least 3 मैनुअल्स आपने कलेक्ट करने हैं। वो किसी भी मशीनरीज में से जो नहीं मशीनरी के हो सकते हैं। आपने वो 3 सबमिट करवाने हैं लाकर यहाँ पर। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल टेक केयर, अल्लाह हाफिज।